हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। सॉरी कि कुछ दिनों से वीडियो लेट जा रहे हैं, आप लोगों को पता है रीज़न। फिर भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्द हम ये स्पीड को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए ला रही हूँ वो भी बहुत टू द पॉइंट है, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम इस मोमेंट पे ठीक ठाक है। यही चीज़ें हमें पढ़ाई अच्छी से करनी, यही टॉपिक को हमें रिवीजन करनी है। तो मैं हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसपी लिटरेचर को, और जुड़े रहिए, हिट द बेल आइकन एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। सो जेन ऑस्टेन के ওয়ার্কস के ক্রোনোলজি আমি গতকালকে বলে রেখেছি। আজকে আমরা আলোচনা করব জেন অস্টেনের একটা ইম্পর্ট্যান্ট যে নভেল, সেটা হলো সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি, যেটার একটা ওভারভিউ, তারপর ক্যারেক্টার্স এবং পুরো থিমটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, যেটা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মনে রাখার জন্য যথাযথ হবে। বেঙ্গলি এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই আমি বলবো, বাংলায় বলছি। আর যেহেতু এই ক্যারেক্টার্সগুলো লিস্ট ইংলিশে লেখা আছে এবং আমি যখন মুখ দিয়ে প্রনাউন্স করবো এগুলো ইংরেজিতেই হবে, তো ক্যারেক্টার্স একবারই বলছি। আদারওয়াইজ যেটা থিম বা প্লট ওভারভিউ সেটাকে একবার বেঙ্গলিতে বলছি, একবার হিন্দিতে বলছি। ওকে, সো Marine Dashwood, Eleanor Dashwood, Colonel Brandon, John Willoughby, Edward Ferrars, Lucy Steele, Mrs. Jennings, Mr. Palmer, John Dashwood, Robert Ferrars, Mrs. Dashwood, Fanny Dashwood, Margaret Dashwood, Mrs. Ferrars, Sir John Middleton, Lady Middleton, Mrs. Palmer, Anne Steele, Henry Dashwood, Mrs. Sophia Gray, Mr. Thomas Palmer, Mrs. Charlotte Palmer. All these are important characters. অ্যান্ড থিম এখানে বাংলায় বলবো দুই বোনের পরিচিতি। সেন্স, যাকে সেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করছে এলিনার, যে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা, তার ইন্টেলেক্ট দ্বারা, প্র্যাকটিক্যালিটি দ্বারা চলে। আর হচ্ছে সেন্সিবিলিটি হলো রিপ্রেজেন্ট করছে সেন্সিবিলিটিকে, সেটা হলো ম্যারিন, যে ভাবনা দিয়ে চলে, কাজ করে, বা ভাবনার দ্বারা সে জীবনযাপন, মানে ভাবনার তার ইমোশনাল ব্যাপারটা বেশি, সে বাস্তববাদী কম, ইমোশনাল বেশি। তো এখানে যদি আমরা সামারিটা দেখি, ড্যাশউড ফ্যামিলিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ড্যাশউড, ওনাদের 3 কন্যা, এলিনার, ম্যারিন অ্যান্ড মার্গারেট, এবং ওনাদের একমাত্র পুত্র জন ড্যাশউড। ওনাদের পুত্রবধূ ফ্যানির এক ভাই এডওয়ার্ড, সে মাঝে মাঝে আসতো এলিনারের সঙ্গে দেখা করতে। মিস্টার মিডলটন 3 কন্যা ও মিসেস ড্যাশউডের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর বার্টন কটেজে নিয়ে যায়। মিস্টার মিডলটন নামে একজন ব্যক্তি ছিল, যিনি কি হচ্ছে মিসেস যে ড্যাশউড ছিলেন, মিসেস ড্যাশউডের 3 কন্যা, তাদের পাশে ছিলেন এবং বার্টন কটেজে নিয়ে যায়। তারপর কি কলোনেল ব্র্যান্ডন ম্যারিনকে পছন্দ করতেন, বাট ম্যারিন তাকে পছন্দ করতেন না। উইলোবিকে পছন্দ করতো ম্যারিন ছিল ইমোশনাল। তারপর কি হচ্ছে রিলেশন, তারপর একটা মানে মেরিন অ্যান্ড উইলোবি একটা রিলেশন ছিল, বা একটা রিলেশন গ্রো করেছিল। তারপর কি হয়, উইলোবি পালিয়ে যায়, তাকে ধোকা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। দেন কি হচ্ছে, বার্টনে এডওয়ার্ড আসে, কিন্তু লুসির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বার্টনে এডওয়ার্ড এসেছিল, কিন্তু লুসির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেরিন ওয়েটিং ফর উইলোবি, মেরিন উইলোবিকে পছন্দ করতো, তিনি তো ধোকা দিয়ে পালিয়ে যান, ওনার আসার জন্য অপেক্ষা করছিল কে, মেরিন, কিন্তু তিনি আসে না। আবার একটা পার্টিতে, সময় পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে এক পার্টিতে দেখা হয়, তারা কথা বলে, অপমানিত হয়। মেরিন কলোনেল ব্র্যান্ডনকে পছন্দ করতে শুরু করেন, কে, মেরিন। আর এডওয়ার্ডকে ছেড়ে লুসি পালিয়ে যায়। ওকে, এডওয়ার্ড এবং লুসির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তারপর বিয়ে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু লুসি কিন্তু পালিয়ে যায় এডওয়ার্ডকে ছেড়ে। এলিনরের কাছে ফিরে আসে কে, এডওয়ার্ড, এবং সব ঠিক হয়ে যায়। উইলোবি ফিরে আসে, ক্ষমা চায়, কিন্তু ফাইনালি যে জুটি বা যে পেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা এলিনর, এডওয়ার্ড এবং ব্র্যান্ডন অ্যান্ড মেরিন। সো ফাইনালি মেরিন কি হলো, মেরিন শুধু কান্না করতো, সেন্সিবিলিটি, ইমোশনাল ছিল মেরিয়ান। অ্যান্ড এলিনার বাস্তবতা বিচার করতো, সেন্স, তাই নভেলের টাইটেল সার্থক হয়েছে। অ্যান্ড প্রিভিয়াস টাইটেল কিন্তু ছিল এলিনার অ্যান্ড মেরিন। পরবর্তীতে এনাদের নাম পাল্টে এই নভেলের যে নাম রাখা হয় সেটা হয় সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি। अभी मैं हिंदी में कहने वाली हूँ। ऐसे वीडियोस के এরকম এই ধরনের ভিডিওর জন্য प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अभी हम हिंदी में इसको ओवरव्यू, प्लॉट, थीम, समरी को समझते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने के लिए भी बहुत ही ईजी होंगे।
एक तो कैरेक्टर्स को मैंने एक बार कह दी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं और एक बार कैरेक्टर्स को रिपीट करूँ। अगर कोई भी स्पेलिंग, कोई भी कैरेक्टर्स के नाम आप लोगों को लग रही है कि मतलब कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप खुद से गूगल पे सर्च करिए, ताकि उससे क्या होंगे, आप लोगों के मन में जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे और आप चेक एंड रीचेक कर सकते हैं। और मैं कभी नहीं कहूँगी कि यही फिक्स्ड है, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग है, लिखने के वक्त इंसान से ही भूल होते हैं, हो सकता है गलती, लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए, ताकि आपको सही पता चले और एक रिवाइज और रिपीटेशन भी हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, हिंदी में कहते हैं ये जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है आप लोगों को दिख रहेंगे, इंग्लिश एंड बंगाली में कुछ चीज़ें हैं, आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ अभी। यहाँ पे दो सिस्टर की एक कहानी है जो कि सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे एलिनर, जो कि इंटेलेक्ट एंड प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर उनके लाइफ वो लीड करते हैं, और सेंसिबिलिटी जो कि मेरिन है, जो कि इमोशनली बहुत ही डिपेंडेंट है एंड इमोशनली सब कुछ सोचते हैं और इमोशनली लाइफ को लीड करते हैं। एंड इसके समरी जब हम कहेंगे, ये जो डैशवुड फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेस डैशवुड, उनके 3 डॉटर्स एलिनर, मैरियन एंड मार्गरेट, और उनके एक सन, एक पुत्र, वो है जॉन डैशवुड। उनके डॉटर इन लॉ, डैशवुड फैमिली के जॉन डैशवुड के वाइफ है फैनी, और डॉटर इन लॉ है मिस्टर एंड मिसेस डैशवुड के, वो है फैनी। फैनी के खुद के एक भाई है एडवर्ड, जो कि एलिनर से मिलने आते थे उनके घर पे। यहाँ पे मिस्टर मिडल्टन एक और अलग कैरेक्टर है, जो कि ये जो मिसेस डैशवुड एंड उसकी जो 3 डॉटर्स है उनके सपोर्ट में रहते थे, और बार्टन कॉटेज में उनको लेकर गए थे। फिर कॉलोनल ब्रैंडन क्या थे, मैरियन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन मैरियन को कॉलोनल ब्रैंडन पसंद नहीं थे, उनको पसंद थे उलोबी। उनको उलोबी और मैरियन के बीच में एक कनेक्शन और एक रिलेशन हो रहे थे, एक बिल्ड कर रहे थे, और तभी क्या हो गया, तभी उलोबी ने उनको धोखा दिया और वहाँ से भाग गए। फिर यहाँ पे ब्रैंटन में एडवर्ड आए थे, बट एडवर्ड और लूसी के मैरिज ठीक हो चुके थे, मैरिज हुए नहीं थे पर मैरिज के बाद पक्के हुए थे। फिर क्या हुआ, मैरियन वेट कर रहे थे किसके लिए, विलोबी के लिए, लेकिन वो नहीं आते हैं। फिर एक पार्टी में उन लोगों के साथ एक दूसरे के साथ फिर दोबारा उनका मुलाकात होते हैं, एक दूसरे को वो लोग डिसरेस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मैरियन कॉलोनल ब्रैंडन को पसंद करने लगते हैं, जो कि आपको पहले ही पता चला, कॉलोनल ब्रैंडन ऑलवेज मैरियन को पसंद करते थे, लेकिन मैरियन विलोबी को पसंद करते थे। उन्होंने धोखा देकर चला गया। फिर उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थे, और बात करते भी उन लोगों ने एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट की। फिर क्या हुआ, तब मैरियन के मन में धीरे धीरे कॉलोनल ब्रैंडन के लिए एक इमोशन फीलिंग्स जगने लगे। फिर एडवर्ड को लूसी ने छोड़कर गया था, शादी की बातें ठीक हुई थी लेकिन शादी हुई नहीं थी। फिर एडवर्ड को छोड़ के लूसी भाग गए। फिर एलिनर के बीच कौन आ गए, एडवर्ड आ गए। फिर उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। विलोबी भी अगेन उन्होंने भी मैरियन के पास आ गए, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, तब तक एलिनर एंड एडवर्ड के पेयर बन चुके थे, और ब्रैंडन एंड मैरियन के भी पेयर बन चुके थे अच्छे से। और इसके बाद फाइनली जो हमें मिलते हैं कि मैरियन सिर्फ रोते थे, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, और एलिनर जो कि प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर सोचते थे, करते थे। इसीलिए ये जो नॉवेल के टाइटल बहुत ही सार्थक हुआ। ये टाइटल, प्रीवियस टाइटल थे एलिनर एंड मैरियन, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद फाइनल टाइटल हुए सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ओके, यही थे मेन थीम। आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एसपी लिटरेचर। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। आपका कोई कमेंट्स हो, सजेशन हो, कोई भी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं बिल्कुल टाइम लेकर अच्छे से आप लोगों का क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करूंगी। और देखते रहिए एसपी लिटरेचर, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एसपी लिटरेचर। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मैं प्रॉमिस हम करती हूँ, कल से मैं और भी बहुत कुछ लाने वाली हूँ, ट्राई कर रही हूँ। और मेरी यो कान की जो दर्द है वो थोड़ी कमी है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुई चुकी है अभी तक, और भी 2-4 दिन लग सकते हैं। अगर अच्छे से ठीक होएगा तो मैं और भी अच्छे फील करूंगी और अच्छे से काम कर पाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के এখানেই থাকছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিও, প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।
আর পড়াশোনা করতে থাকুন, সামনেই পরীক্ষা। তো আমরা আগামীকাল থেকে আরও অনেক কিছু নিয়ে আসবো, কিন্তু এই কানের ব্যথাটা একটু পুরোপুরিভাবে সেরে গেলে আমি আরও কাজ করতে আরও মানে ভালোভাবে দ্বিগুণ হারে আরও অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারবো। তো অবশ্যই দেখতে দেখুন এসপি লিটারেচার, স্টে কানেক্টেড এসপি লিটারেচার, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট। থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ অল।